Hello everyone, welcome back to my channel. Jai Shri Krishna. So today we are going to start day 3 for CUET UG English Preparation 2026. So let's see the topic we will be covering in the video. First we will be covering reading comprehension. देखो reading comprehension सबसे easiest topic है जहाँ पर आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो इंग्लिश के एग्जाम में. सेकेंड वी हैव वोबल एबिलिटी जिसमें आज हम पैरा जंबल्स देखेंगे. So let's start with the video. Starting with the passage 1. In the modern world, the concept of success is often associated with material wealth and social status. However, this narrow definition overlooks the importance of personal satisfaction and mental well-being. Many individuals who achieve financial success often report feeling unfulfilled due to lack of purpose or meaningful relationships. Therefore, success should be viewed as a balance between professional achievements and personal happiness. So, सबसे पहले पैसेज पढ़ते के साथ आपको देखना है कि मेन आइडिया क्या है, पैसेज हमें क्या बताना चाह रहा है. तो ये पैसेज हमें क्या बता रहा है, पैसेज हमें बता रहा है सक्सेस के बारे में, बट हमें सक्सेस को बैलेंस करना चाहिए अपने प्रोफेशनल अचीवमेंट और पर्सनल हैप्पीनेस में. सो लेट्स सी द क्वेश्चन 1. व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज. पैसेज का सेंट्रल आइडिया क्या है. सो हियर वी आर हैविंग 4 ऑप्शंस. आप जल्दी से बताओ आपको क्या लगता है एंड डू कमेंट बिलो. सो फर्स्ट ऑप्शन इज वेल्थ डिफाइन सक्सेस. B. Success is only about social status. C. Success should include personal happiness along with achievements. D. Relationships are unimportant. According to me, here the right answer will be option C. Success should include personal happiness along with achievement. Personal happiness भी होनी चाहिए achievements के साथ success में. So let's see the second question of this. What can be inferred? Conclusion क्या निकलता है. We are having 4 options here. A. Wealth guarantees happiness. B. Personal satisfaction is essential for true success. C. Social status is irrelevant. D. Success is easy to achieve. So here, right option will be B. Personal satisfaction is essential for true success. आपकी खुद की satisfaction necessary है असली सक्सेस के लिए. अगर आप खुद ही सेटिस्फाइड नहीं हो तो उस सक्सेस का कोई फायदा नहीं है. ये बेसिक कंक्लूजन है इस पैसेज का. लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन ऑफ द पैसेज. टोन ऑफ द पैसेज. हियर दे आर आस्किंग यू द टोन. सो वी आर हैविंग 4 ऑप्शंस. A. Critical. B. Balanced. C. Humorous. D. Angry. So according to me here right option will be B. Balanced. एक balanced tone है. ना तो ये टॉपिक किसी चीज को क्रिटिकली एनालाइज कर रहा है, ना ही कुछ एंग्रली हमें बता रहा है. सो देयर इज अ बैलेंस टोन कि हाँ हम सक्सेस के बारे में तो बात कर रहे हैं, उसके अचीवमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, बट साथ में हम अपने हैप्पीनेस की भी बात कर रहे हैं. सो लेट्स सी द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ द पैसेज. मीनिंग ऑफ ओवरलुक्स. ओवरलुक्स का मीनिंग क्या है अकॉर्डिंग टू यू. हियर आर द 4 ऑप्शंस. A. Observes. B. Ignores. C. Understands. D. Supports. So according to me the right option will be B, that is ignores. Overlook का मतलब क्या है. Ignore. So let's see the passage 2. Environmental conservation has become a global concern in recent years. Rapid industrialization and urbanization has led to significant environmental degradation. While technologically have improved living standards, they have also contributed to pollution and resource depletion. It is essential for individuals and governments to take collective responsibility to ensure sustainable development for future generation. So passage पढ़ के आपको पहली चीज क्या समझ आई, that environmental कंजर्वेशन की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है. जो आज के टाइम में इंडस्ट्रीज हैं जो ग्रो कर रही हैं, नो दे आर अचीविंग एवरीथिंग, बट लिविंग स्टैंडर्ड्स तो इम्प्रूव हो रहे हैं, बट उसके साथ साथ क्या पॉल्यूशन भी तो कंट्रीब्यूट हो रहा है. सो लेट्स सी द क्वेश्चन 1. व्हाट इज द मेन आइडिया. मेन आइडिया क्या है. सो द मेन आइडिया अकॉर्डिंग टू यू इज, हियर यू आर हैविंग 4 ऑप्शंस. फर्स्ट, टेक्नोलॉजी is harmful. Environmental conservation is necessary for sustainable future. Urbanization should stop. Government
are responsible. So according to me the answer will be B. Environmental conservation necessary है sustainable future के लिए. ये passage हमें यही idea दे रहा है. Let's see the second question of the passage. Inference. Conclusion क्या निकल रहा है? Option A, only government should act. सिर्फ गवर्नमेंट एक्ट करे. ऑप्शन बी, टेक्नोलॉजी हैज नो बेनिफिट्स. टेक्नोलॉजी के क्या बेनिफिट्स नहीं है. ऑप्शन सी, बोथ इंडिविजुअल एंड गवर्नमेंट मस्ट एक्ट. हमें खुद और गवर्नमेंट दोनों को मिलकर एक्ट करना चाहिए इसके लिए. और ऑप्शन डी, पॉल्यूशन इज अनअवॉइडेबल. पॉल्यूशन को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू मी आंसर विल बी ऑप्शन सी. हमें और गवर्नमेंट को दोनों को इस चीज पे एक्ट करना चाहिए साथ में. तभी हम लोग फ्यूचर जनरेशन के लिए रिजर्व कर पाएंगे अपने सोर्सेस को. सो लेट्स सी द क्वेश्चन थर्ड. टोन क्या है इस पैसेज की? ऑप्शन ए, अलार्मिस्ट. ऑप्शन बी, इंफॉर्मेटिव. ऑप्शन सी, ह्यूमरस. और ऑप्शन डी, नेगेटिव. सो अकॉर्डिंग टू मी हियर द राइट ऑप्शन इज बी, इंफॉर्मेटिव. ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जैसे हमारी इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही हैं तो पोल्यूशन भी ग्रो कर रहा है. तो हमें और हमारी गवर्नमेंट को इस चीज को देखकर कुछ एक्शंस लेने चाहिए फॉर फ्यूचर जनरेशन. सो लेट्स सी द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ द पैसेज. मीनिंग ऑफ डिप्लीशन. डिप्लीशन का मतलब क्या होता है? पैसेज के अकॉर्डिंग आपको ये बताना है. डिप्लीशन का मतलब होता है किसी चीज में कमी होना. सो हियर यू आर हैविंग फोर ऑप्शंस. ऑप्शन ए, इंक्रीज. ऑप्शन बी, रिडक्शन. ऑप्शन सी, क्रिएशन. ऑप्शन डी, डेवलपमेंट. सो अकॉर्डिंग टू मी हियर द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज रिडक्शन. रिडक्शन हो रही है किस चीज की? रिसोर्सेज की. Here you can see the line that they have also contributed to pollution and resource depletion. जो इंडस्ट्रीज हैं इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है पोल्यूशन. एक तो ये लोग पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं और दूसरा जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसको भी रिड्यूस कर रहे हैं. सो लेट्स सी द थर्ड पैसेज. फेलियर इज ऑफन perceived as a negative outcome, yet it plays a crucial role in personal growth. It provides individuals with valuable lessons and opportunities for self-improvement. Those who view failure as a learning experience are more likely to develop resilience and achieve long-term success. Thus, failure should not be feared but embraced as a stepping stone towards progress. So यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? पैसेज पढ़कर आपको क्या समझ आया? यहाँ पे हम फेलियर की बात कर रहे हैं कि फेलियर जो है उसके नेगेटिव आउटकम्स तो हैं, लेकिन ये हमारी पर्सनल ग्रोथ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. सो लेट्स सी द क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज? पैसेज का सेंट्रल आइडिया क्या है? ऑप्शन ए, फेलियर शुड बी अवॉइडेड. हम फेलियर को अवॉइड करें. ऑप्शन बी, फेलियर नेसेसरी फॉर ग्रोथ. फेलियर ग्रोथ के लिए नेसेसरी है. ऑप्शन सी, सक्सेस इज इजी. सक्सेस बहुत इजी है. या फिर ग्रोथ इज नॉट इम्पॉर्टेंट. ग्रोथ इम्पॉर्टेंट नहीं है. सो अकॉर्डिंग टू मी द राइट ऑप्शन इज बी, दैट इज फेलियर इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ. अगर फेलियर नहीं होगा तो शायद ही आप लोग ग्रो कर पाओगे. सी द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट फेलियर. But you people grow well after that failure comes to you. सब लोग अपना 100% देने का ट्राई करते हैं. So let's see the second question of the passage. What can be inferred? Option A, failure leads to success directly. Option B, learning from failure builds resilience. Option C, failure has no value. Option D, success comes without effort. So according to me here right answer will be B. हमें लर्न करना चाहिए अपने फेलियर से. सो लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन. टोन क्या है पैसेज की? मोटिवेशनल टोन है, नेगेटिव टोन है, क्रिटिकल टोन है, ह्यूमरस टोन है. सो हियर द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, मोटिवेशनल टोन है. हाँ, ऑब्वियसली हमें मोटिवेशन ये तो दे रहा है कि फेलियर नहीं होगा तो पर्सनल ग्रोथ कैसे होगी. लेट्स सी द फोर्थ क्वेश्चन. मीनिंग ऑफ रेजिलियंस. इसका मतलब क्या है? ऑप्शन ए, वीकनेस. Option B, ability to recover quickly. Option C, fear. Option D, laziness. So here the right answer will be option B, ability to recover quickly. Resilience का मतलब होता है कि जल्दी से recover करना. So this was all about the reading comprehension part. हमने देखा कि कैसे questions आएंगे एग्जाम में और this was the basic. अभी हमने बेसिक से शुरू किया है. स्लोली हम लोग मॉडरेट लेवल देन हाई लेवल पर भी आएंगे. सो लेट्स सी द वोबल एबिलिटी. पैरा जंबल्स. लेट्स स्टार्ट विद द पैरा जंबल्स.
देखो सबसे पहले आपको पैरा जंबल में क्या करना है, आपको सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं, देखना है कि किस चीज के बारे में बात हो रही है और वो बात कौन सी एग्जैक्ट लाइन में हो रही है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे सारे जम्बल्ड सेंटेंसेस को। ऑप्शन ए हियर इज however not all information available online is reliable. Then B, the internet has revolutionized access to information. Users must develop critical thinking skills. This makes it essential to verify sources. तो हमें क्या समझ आया, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, हमें ये तो पता चल गया कि हम कहीं ना कहीं इंटरनेट की बात कर रहे हैं। हमें कौन से ऑप्शन में दिख रहा है कि हाँ हम इसको फर्स्ट ऑप्शन लेके चल सकते हैं अपने लिए। अकॉर्डिंग टू मी दैट इज इन बी। देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है द इंटरनेट, हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं। ऑप्शन बी विल बी द फर्स्ट आंसर। कहाँ पे इंफॉर्मेशन के साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं, देखो दूसरी लाइन में कहाँ पर हम इंफॉर्मेशन के बारे में हमें पता चल रहा है। हाउ एवर नॉट ऑल इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑनलाइन इज रिलायबल। हाँ हमें पता चल गया बी ए का एक कॉम्बो है। ठीक है, बी के बाद ए आएगा, ये तो डन है। यहाँ पे इंटरनेट की बात हो रही है, दैट इज इन बी, एंड फिर हम उसे कनेक्ट कर रहे हैं ए पार्ट के साथ। अब देखो हम थर्ड क्या कनेक्ट कर सकते हैं। अब हमने बात की कि इंटरनेट है, एक्सेस कर रहा है इन्फॉर्मेशन को, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारी इन्फॉर्मेशन रिलायबल हो। देन क्या ऑप्शन हो सकता है, ऑप्शन डी शुड बी देयर, दैट दिस मेक्स इट एसेंशियल टू वेरीफाई सोर्सेज। तो हाँ हमारे लिए क्या है, हमारे लिए जरूरी है वेरीफाई करना सोर्सेज को। एंड देन सी पार्ट, सो दैट इज यूजर्स मस्ट डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है आपका, बी ए डी सी। अब हमें ऐसे ही कनेक्ट करके फर्दर देखना है कि कैसे हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स सी द पैरा जंबल 2। ये रहा आपका पैरा, जल्दी से इसको सॉल्व करो और कमेंट करो अपना राइट आंसर। देखो जल्दी से सारे ऑप्शंस पढ़ो। पहला ऑप्शन है एज अ रिजल्ट प्रोडक्टिविटी डिक्रीजेस सिग्निफिकेंटली, many people struggle with time management. C, they often fail to prioritize tasking efficiently. D, this leads to unnecessary stress and delays. देखो हम किस चीज की बात कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं फेलियर सक्सेस की बात कर रहे हैं कि लोग जो है वो अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि कहाँ पर हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ व्यू, यहाँ से तो हम अपने पैरा को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। दे ऑफन किसकी बात कर रहे हैं, कौन, एंड दिस लीड हु लीड्स टू। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं बी के साथ, दैट इज मेनी पीपल स्ट्रगल विद टाइम मैनेजमेंट। बहुत से लोग स्ट्रगल कर रहे हैं टाइम मैनेजमेंट के साथ। अब टाइम मैनेजमेंट के साथ स्ट्रगल तो कर रहे हैं, बट सेकंड क्या हो सकता है, सेकंड हो सकता है ऑप्शन सी, दैट इज दे ऑफन फेल टू प्रायोरिटाइज टास्क इफेक्टिवली। वो अपने टास्क को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते हैं, इसलिए तो टाइम मैनेजमेंट के साथ वो लोग सफर कर रहे हैं। सो बी के बाद सी आएगा, ये हमें पता चल गया, कनेक्ट हो गया। अभी देखो ये सब चीजें जब हो रही है, टाइम मैनेजमेंट के साथ स्ट्रगल हो रहा है, फेलियर हो रही है प्रायोरिटाइज करने के लिए कि टास्क प्रायोरिटाइज नहीं हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, सो दिस लीड्स टू अननेसेसरी स्ट्रेस एंड डिलीज। देन ये सीक्वेंस हमें पता चल गया, बी सी डी एंड लास्ट लेफ्ट दैट इज ए। सो राइट सीक्वेंस विल बी बी सी डी ए। लेट्स सी द आंसर, बी सी डी ए इज द राइट आंसर। So let's see the para jumble 3. थर्ड पैरा जंबल की बात करते हैं। Consequently, individuals must adapt to changing demands. The job market is constantly evolving. New skills are required in modern places. Traditional roles are becoming less relevant. तो हमने पहले जल्दी से सारे पैरास पढ़े। अब हमें देखना है कि हम कहाँ से कनेक्ट कर पा रहे हैं इस पैरा के साथ, हम किसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसमें जॉब मार्केट्स की बात कर रहे हैं, तो हमें दिख रहा है कि हमें बी ऑप्शन को पहले रखना है। नाउ लेट्स सी कि हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं सेकंड के साथ। ट्रेडिशनल रोल्स आर बिकमिंग लेस रिलेवेंट। हाँ, जॉब मार्केट्स जो है वो इवॉल्व हो रही हैं, ट्रेडिशनल रोल्स जो है वो कम रिलेवेंट हो रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, न्यू स्किल्स आर रिक्वायर्ड इन मॉडर्न वर्क प्लेस। अब हमें किस चीज की जरूरत है, हमें न्यू स्किल्स की जरूरत है। Consequently, individual must adapt to changing demand. तो आज के टाइम में मार्केट चेंज हो रही है, ट्रेडिशनल रोल्स बहुत ही कम रिलेवेंट बचे हैं, न्यू स्किल्स की जरूरत है और लोगों को अडेप्ट करनी चाहिए न्यू स्किल्स। सो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पैरा, दैट इज BDCA. So let's see the answer, that is BDCA. So yes, continuing with the para jumble 4. सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास। दिस हैबिट इनहेंस बोथ नॉलेज एंड कंसंट्रेशन।
B. Reading regularly has numerous benefits. C. It also improves vocabulary and comprehension skills. D. Therefore, developing a reading habit is essential. कहाँ से आप सबसे पहले स्टार्ट कर सकते हो? सो दिस हैबिट, हमें नहीं पता हम कौन सी हैबिट की बात कर रहे हैं. रीडिंग रेगुलरली, हाँ शायद ये स्टार्ट हो सकता है. इट ऑल्सो, क्या, वॉट ऑल्सो, हमें नहीं पता. डी देयरफॉर, वॉट नहीं. तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि बी से तो हमारी स्टार्टिंग होगी. अब हम रीडिंग रेगुलरली से हम स्टार्ट करेंगे. दैट रीडिंग रेगुलरली हैज न्यूमरस बेनिफिट्स. अब देखेंगे कि कहाँ पे हम इसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं. तो दिस हैबिट, हमें हैबिट नहीं पता कि इम्प्रूव कर सकता है. हाँ शायद रीडिंग रेगुलरली इम्प्रूव कर सकता है. सो यहाँ पे हमें पता चल गया कि डी बी सी का पेयर है. इट ऑल्सो इम्प्रूव्स वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स. ये हमारा डन है. अब अगर हम रेगुलरली रीड कर रहे हैं जिससे हमारी वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स इम्प्रूव हो रही हैं, बिकॉज यहाँ पे डी पार्ट तो हमसे कनेक्ट नहीं हो पाएगा. सो लेट्स सी ए फर्स्ट, that this habit enhances both knowledge and concentration. ये habit क्या कर रही है? enhance कर रही है knowledge को भी और concentration को भी. So हमें पता चल गया that right answer is A. B, C, A and then D. Therefore, developing a reading habit is essential. So here the right sequence is B, C, A, D. So जल्दी से मुझे comment करके बताओ कि आप इसको समझ पाए कि नहीं समझ पाए. Here is the para jumble fifth. ये पैरा मैं आपके होमवर्क क्वेश्चन के लिए छोड़ती हूँ. ट्राई करो और कमेंट करो कि आपके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या होगा. एंड राइट आंसर विल गोना पिन इन द कमेंट सेक्शन. सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो. इफ यू लाइक द वीडियो then hit the like button, share the video and do subscribe my channel for more such content. All the best for your examination, and in the upcoming lectures I will be sharing a new vocab video. So this is all for it. Bye bye.